people, welcome to Prep Elevate. Let's continue with the decision making series. We'll pick up another question and try solving it, right? So, what are the key points that we remember for decision making? We'll try and not take extreme decisions and we'll be ethical in our approaches. Okay, two things here. Okay, so what is the scenario today? ABC Business School was a school with a difference. Regarded as one of the top business schools in Western India, but relatively unknown beyond that. Okay, so we are talking about ABC Business School, and it was a school with the difference. What was the difference? That it was one of the top business schools in Western India, but it was relatively unknown beyond that. So we do come across such institutes which are well known in the area that they operate in, but beyond that they do not really have a national importance. Okay, a lot of people don't know about those institutes. ABC Business School is one such institute. The school catered to smaller organizations seeking to hire students for sale and marketing positions with occasional openings in HR roles. What is usually expected out of a business school? आप क्या expect करते हो? वो आपको एक fantastic career growth देगा. यही expect करते हो, right? उसी के लिए आप इतनी पढ़ाई करते हो, entrances crack करते हो, GDPI crack करते हो, and then you land up there, right? But ABC Business School, इसका target audience ही बहुत unique है, and ये कैसे स्टूडेंट्स को लाइक दे मेक व्हाट काइंड ऑफ स्टूडेंट्स यूजुअली बिकम अ पार्ट ऑफ एबीसी बिजनेस स्कूल? दे यूजुअली केटर टू स्मॉलर ऑर्गेनाइजेशंस. ठीक है, ऐसा भी नहीं कि वो आपको एक फिनोमिनल ग्रोथ दे दे रहा है. वो एक बहुत ही लेट्स से एक पर्टिकुलर रीजन में एक वेल नोन बिजनेस स्कूल है. ऑब्वियसली पीपल डू गेट एडमिटेड टू दैट बी स्कूल, बट इनका जो करियर ग्रोथ है ना, दैट इज वेरी लिमिटेड. स्कोप बहुत लिमिटेड है कि ये बच्चों को सेल्स एंड मार्केटिंग पोजीशंस के लिए प्रिपेयर करते हैं और कभी कभी एचआर रोल्स के लिए भी प्रिपेयर करते हैं. एंड दे लाइक यूजुअली स्मॉलर ऑर्गेनाइजेशंस hire from ABC Business School. These students were open to secure job opportunities even if they offered relatively lower salaries. Okay, so इनका जो target audience है, जो students भी है, उन्हें पता है ABC Business School किस तरह function करता है. तो ऐसे ही students वहाँ पढ़ने आते हैं, वहाँ admission लेते हैं जिन्हें एक बस job चाहिए. उन्हें सैलरी से बहुत ज्यादा लेना देना नहीं है. Lower packages are also fine for them. They just want a job. The organizations that recruited from ABC did not really care for the talent but appreciated the students' ability to follow orders without questioning them. So जो hire करने के लिए organizations आते थे ABC में, उनकी भी expectations बहुत clear थी. They were not really looking at intellectual people as such. They were just looking for people who could get the job done, follow orders without questioning, don't use a lot of your brains. We just need manpower, we just need to hire people, so we are hiring you. Students की expectations भी बहुत clear थी. हमें एक बस job चाहिए, बस we just want a job. We don't care what the packages are or what the career growth it provides and stuff. तो हमें ये सब के बारे में ज्यादा जानने की जरूरत नहीं है. बस इसी तरह से इनका ये पूरा सिस्टम चल रहा था. The school's strength laid in its alumni who consistently returned to the institution for recruitment, thereby ensuring the school's continued existence. So इनकी स्कूल की जो alum base थी ना, वो काफी इंपॉर्टेंट थी एबीसी के लिए, बिकॉज वही इनके रिक्रूटर्स बनकर आते थे. ठीक है, और उन्हें पता था व्हाट काइंड ऑफ टैलेंट टू एक्सपेक्ट, व्हाट काइंड ऑफ लाइक पीपल टू एक्सपेक्ट फ्रॉम देयर. उनकी नीड्स इस स्कूल से तो पूरी हो रही थी, उनकी जो ऑर्गेनाइजेशनल नीड्स है, तो वो हमेशा ही बार बार आते थे और यहाँ से काफी लोगों को हायर करते थे. Kind of very symbiotic relationship, right? That you depend on your alum to provide opportunities to your students, and then their employability of their organization is also boosted. So they actually kind of depend on ABC. उन्हें जिस तरह के लोग चाहिए उन्हें ABC में मिलते थे, और ABC को जिस तरह की jobs चाहिए वो ABC के ही alum उन्हें provide करते थे. ठीक है, given the placement record, the school attracted a specific segment of business school aspirants who wanted a solid job but were not excited about learning. This is clear from the discussion that we have had. We did not find very aspirational people as part of ABC Business School. Just regular folks who wanted a degree, who wanted a job after studying, like after 2 years of study, and then and it was guaranteed somehow, like they had a good placement record because alum consistently वहां से hire करते थे. तो उन्हें पता है कि एक बार अगर वो इस business school का part बन गए
तो बहुत अच्छी नहीं होने से भी एक उन्हें जॉब कहने के लिए जॉब तो मिल ही जाएगी, और वही उनका टारगेट भी था। तो एक बहुत ही सिम्बायोटिक रिलेशनशिप में ये एबीसी बिजनेस स्कूल फंक्शन कर रहा है। मिडिल में देयर इज अ स्कूल, एबीसी बिजनेस स्कूल है, सेंटर ऑफ द सिनेरियो। एलम बेस है which depends on ABC Business School to hire the kind of people they need. So basically not very intellectual people who get the job done, regular folks. And दूसरे साइड पे students हैं who are not looking at phenomenal career growth after an MBA or stuff. They are just looking to get a job. Learning से भी उन्हें कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। क्वेश्चन देखते हैं। Recently, some alumni of ABC threatened that their children should be given preference in admissions or they would withdraw as recruiters. Now this is a very serious threat. ABC का functionality ही उनके alum पे एक तरह से depend करता था. So they threatened that if you don't give our children preference when it comes to admission, we're not going to hire henceforth. Okay, so we'll be very particular about it. We'll not hire. The director was, however, hesitant about allowing alumni to interfere in running the school because the fairness of the admission process had earned ABC high respect within the corporate world that recruited from the school. Alumni formed a major proportion of recruiters, but उसके अलावा भी corporate houses थे, maybe not very well known ones, but उसके अलावा भी corporate houses थे जो वहाँ से students को hire करते थे. Remember sales, marketing and occasionally HR roles के लिए भी hire होते थे. तो majority of hiring alumni कर रही है, no doubt, but एक certain percentage of hiring बाकी corporate small corporate offices would also hire. अभी ABC had earned a good reputation that they were fair in their placement, like admission process. राइट, दे वुड whatever is their process, जो भी उनका प्रोसेस है उसमें वो काफी फेयर थे, दे वर वेरी ट्रांसपेरेंट. अभी अगर alumni यहाँ पर इंटरफेयर करेंगे, the entire process is going to become unfair, right? तो and now but alumni is threatening कि मेजर प्रोपोर्शन तो हम हायर करते हैं आपके कॉलेज से, सो इन अ वे यू आर डिपेंडेंट अपॉन आवर सर्विसेज, राइट? तो अगर हम हायर नहीं करेंगे मेजोरिटी को तो आपका स्कूल फंक्शन कैसे करेगा? नोबडी इज गोइंग टू जॉइन योर स्कूल, राइट? अल्टीमेटली जो यहाँ है उनका तो एंड गोल ही एक ही एक जॉब मुझे मिलनी चाहिए और मेजोरिटी हम हायर करें, so you will have to listen to us. So give our children preference in admissions or we are going to withdraw as recruiters. ये scenario है, ये dilemma है. So which of the following reasons, if true, will best help the director not to worry about pandering to those alumni? Pandering matlab giving in to people's request, right? Like fulfilling their desires, whatever their desires are, without really questioning. So pandering to those. तो अभी डायरेक्टर डज नॉट रियली वांट टू गिव इन टू द एलुमनाइज रिक्वेस्ट, वो नहीं चाहते ये रिक्वेस्ट को रखना, बिकॉज ओवरऑल एक एबीसी इज नोन फॉर द फेयरनेस इन एडमिशन प्रोसेस, वो उस चीज को टार्निश नहीं करना चाहते हैं. सो विच रीजन इज गोइंग टू हेल्प हिम बेस्ट डिसाइड दैट ओके, इवन इफ आई डोंट लिसन टू द एलुमनाई वी आर नॉट गोइंग टू लाइक बी इन बिग ट्रबल. तो ये कब पॉसिबल है? रिमेंबर आई केप्ट मेंशनिंग सिम्बायोटिक रिलेशनशिप है, सिम्बायोटिक रिलेशनशिप है. सिम्बायोटिक रिलेशनशिप तभी चल सकता है ना जब दोनों पार्टीज को, द स्टेक होल्डर्स इन्वॉल्व, दे हैव सम कॉमन एजेंडा और बोथ ऑफ देम आर बेनिफिटिंग फ्रॉम द प्रोसेस. ओके, एक को भी जहां ज्यादा बेनिफिट होने लगा दूसरे को कम होने लगा तो वो टूट जाएगा रिलेशनशिप. तो यहाँ पर तो है एक सिम्बायोटिक रिलेशनशिप, तो है, दोनों कहीं ना कहीं एक दूसरे पे डिपेंडेंट तो है. अगर किसी तरह डायरेक्टर से कन्विंस हो जाए कि आई डोंट रियली हैव टू लाइक गिव इन टू एनी रिक्वेस्ट दैट दे मेक, ओके, लाइक कुछ भी अगर वो आउट ऑफ द ब्लू दे आर रिक्वेस्टिंग एंड आई डोंट हैव टू फॉलो इट, अगर वो कन्विंस हो जाए that and this is also not going to like tarnish the image of my B school, वो ऐसा डिसीजन ले ही सकते हैं. बट क्या सिनेरियोज है, क्या ऑप्शंस है, वो देखते हैं. No business school in the region has allowed alumni any say in managing the operations. अभी किसी और बिजनेस स्कूल के साथ एबीसी को तो कंपेयर नहीं कर सकते ना, इसका तो सिनेरियो ही बहुत अलग है. रिमेंबर इट इज डिफरेंट इन द वे इन विच इट फंक्शंस, राइट? एलुमनाई पे बहुत ज्यादा हैवी डिपेंडेंस है इनका फॉर एम्प्लॉयबिलिटी एंड रिक्रूटमेंट. सो किसी और बिजनेस स्कूल से कंपेयर करके तो इनका डिसीजन हम नहीं ले सकते, ठीक है? वी डोंट नो हाउ द बिजनेस स्कूल्स आर ऑपरेटिंग, उनका डिफरेंट ऑपरेशन प्रोसेस होगा, इस बेसिस पे तो नहीं ले सकते. अगर ऐसा लेंगे तो इट इज गोइंग टू डिस्टर्ब द फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन. अभी ABC has not entertained any request from the alumni till date. This is a very like assumption based scenario कि आज तक कोई रिक्वेस्ट को एंटरटेन नहीं किया है तो अभी भी एंटरटेन नहीं करेंगे. रिमेंबर दिस इज अगेन अ वेरी एक्सट्रीम स्टांस टू टेक, ओके? For somebody who depends on a particular group of people for employability, for recruitment, for running the business school smoothly,
दिस इज नॉट समथिंग दैट that director could decide or should decide rather. ये बहुत extreme हो जाएगा that we are not going to entertain anything. We have not entertained anything so far, तो आगे जाके भी we are not going to entertain any request. थोड़ा extreme है ये. अभी देखो, the alumni depend upon ABC's success to enhance their employability. Now this is a good reason, right? Director को पता है कि alumni को भी अपने कंपनीज के लिए जैसे लोग चाहिए वो ABC में ही उनको मिलेंगे, तो उनकी employability boost करने के लिए भी वो एबीसी का सक्सेसफुल होना बहुत इंपॉर्टेंट है. तो एबीसी का सक्सेसफुली फंक्शन करना बहुत इंपॉर्टेंट है. तो उसके बाहर जाकर अगर वो डिसाइड करेंगे तो एंड टर्म में उन्हें भी बहुत ज्यादा दे आर गोइंग टू लाइक फेस द कॉन्सिक्वेंसेस. तो यहाँ पे उनका इंटरेस्ट जहाँ पे हैम्पर होने लगेगा, दिस इज अ गुड रीजन. ठीक है, दिस इज अ गुड रीजन. दोनों पार्टीज के यहाँ पे एक अच्छा एक रीजन है. डी देख लेते हैं. The alumni were the reason that ABC was able to attract corporates. ये तो उसके अगेंस्ट जाएगा ना. अगर एलिमनाई पे हम पूरी तरह डिपेंडेंट हैं तो उसके अगेंस्ट हम कोई डिसीजन नहीं ले पाएंगे. तो दिस इज रॉन्ग. हमें उनके अगेंस्ट जाना है, हमें उनके रिक्वेस्ट को कंसिडर नहीं करना है, पैंडर नहीं करना है, बट हमें अपना रेपुटेशन भी स्पॉइल नहीं करना है, हमें अपना ऑपरेशंस भी स्पॉइल नहीं करना. Some of the alumni were regularly teaching as guest faculty in the school. फिर तो आप एकदम उनके अगेंस्ट नहीं जा सकते. Not only are they now involved in recruitment, they are also involved as faculty. तो repercussions, double repercussions हो सकते हैं यहाँ पे. ये हम नहीं कर सकते. This looks like a good choice. ठीक है कि alumni भी हमारे ऊपर डिपेंडेंट है, तो बहुत ज्यादा प्रेशर तो हमारे पे नहीं क्रिएट कर सकते. That we admit their kids or give them preference that way. ठीक है. ये सारे जो क्वेश्चंस होते हैं ना डिसीजन मेकिंग में, दिस इज अ लॉट अबाउट हाउ यू थिंक अबाउट सिनेरियोज फ्रॉम अ वेरी फेयर न्यूट्रल पर्सपेक्टिव. सो रिफ्रेन फ्रॉम टेकिंग एक्सट्रीम डिसीजंस. ओके, आप ऐसा डिसीजंस नहीं ले सकते दैट माई वे और हाई वे. ये डिसीजंस सही नहीं होते हैं बिजनेस सिनेरियो में, तो इसमें आपको थोड़ा केयरफुल रहना है. ओके, ये देखते हैं. अक्रॉस द कंट्री बिजनेस स्कूल्स वर रैंक्ड बाय पॉपुलर मैगजीन्स. A few business schools in the same region were applying for rankings, hoping that rankings will affect their visibility among corporate houses and recruiters. ये बहुत ही common चीज है ना. B schools usually आप भी ranking देखते होगे when you are preparing for MBA entrances. Why are you even giving that and why are you taking the trouble to watch this video and learn decision making? आपको एक्सेलराई जाना है. कैसे पता एक्सेलराई एक अच्छी स्कूल है? यूजुअली उस रैंकिंग्स में इट्स वन ऑफ द टॉप फीचर्ड बी स्कूल्स. तो रैंकिंग्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं बी स्कूल के लिए. तो रैंकिंग का यहाँ पे एक क्वेश्चन है दैट अ लॉट ऑफ बी स्कूल्स, और भी बी स्कूल्स है उस रीजन में, उन्होंने रैंकिंग्स के लिए अप्लाई किया है. उनका होप क्या है कि अगर उनका अच्छा रैंकिंग आएगा इट इज गोइंग टू इफेक्ट देयर विजिबिलिटी. सो एक रिलायबिलिटी फैक्टर आ जाएगा, तो लॉट मोर रिक्रूटर्स एंड कॉर्पोरेट हाउसेस आर गोइंग टू हायर फ्रॉम देयर कैंपसेस. अभी देखो, to achieve a good rank, ABC faculty members who have primarily focused on teaching thus far would need to actively engage in research and consulting activities. अभी बी स्कूल का जो रैंकिंग होता है या कोई भी कॉलेज एजुकेशनल इंस्टीट्यूट का जो रैंकिंग होता है, इट इज अ वेरी होलसम प्रोसेस, इट्स अ वेरी होलिस्टिक प्रोसेस. सिर्फ वो कैंपस पे नहीं डिपेंड करता, सिर्फ वो आपका मीन मीडियन एवरेज सैलरी पे डिपेंड नहीं करता, वो आपके जो फैकल्टी रहते हैं उनके एकेडमिक क्रेडेंशियल्स, वो रिसर्च कर रहे हैं या नहीं, क्या वो रेगुलरली उनका रिसर्च कहीं पब्लिश हो रहा है या नहीं, लाइक एमिनेंट जर्नल्स में, बहुत सारी चीजों पे डिपेंड करता है. अभी एबीसी के साथ क्या है दैट इफ एबीसी हैज टू अचीव अ गुड रैंक, तो उनके जो फैकल्टी मेंबर्स को ना अभी एंगेज करना पड़ेगा रिसर्च और कंसल्टिंग में. वो अभी तक सिर्फ टीचिंग पर ही फोकस कर रहे थे. रिमेंबर इट्स अ वेरी डिफरेंट बी स्कूल, राइट. उनको ऐसा कुछ अपने आप को टॉप बी स्कूल में एस्टेब्लिश करना भी नहीं, तो उनका तो एजेंडा ही डिफरेंट है, वो डिफरेंटली फंक्शन कर रहे हैं. बट अभी अगर अच्छी रैंकिंग चाहिए तो ये सारी चीजें करनी पड़ेंगी. द डायरेक्टर वाज अवेयर that asking the faculty to switch to research and consulting would not be easy. Obviously, आप एक स्कूल एक इतने दिन से एक सर्टन बिलीफ पे चल रहा है, एक सर्टन वे में चल रहा है, सडनली रैंकिंग के लिए आप बोलोगे अपने फैकल्टी मेंबर्स को दैट यू स्विच टू कंसल्टिंग, यू स्विच टू रिसर्च, इट्स डिफिकल्ट, राइट. वो इमीडिएट प्रोसेस तो है भी नहीं. ठीक है, तो अभी प्रॉब्लम क्या है? Which of the following facts will best help the director not to worry about applying for rankings? आपको रैंकिंग्स की जरूरत क्यों नहीं होगी एज एज समबडी हु इज रनिंग द बी स्कूल? रैंकिंग की जरूरत आपको कब नहीं होगी? जब आपको पता है कि चाहे मुझे रैंक आए या नहीं आए, मेरे जो प्रेजेंट सिनेरियो है या जो फ्यूचर मेरे प्लान से उस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा. तभी आप एकदम निश्चिंत हो सकते हो दैट नो मैटर इफ आई गेट अ रैंक और नॉट, द वे इन विच इट इज फंक्शनिंग, इट इज गोइंग टू कंसिस्टेंटली फंक्शन दैट वे.
तब आप यू नॉट वरी अबाउट रैंकिंग। आप अपने केस में देख लो ना, फाइनल ईयर में क्या होता है, एक बार अगर आपका प्लेसमेंट हो जाता है, सो यू आर नॉट रियली दैट बॉदर्ड अबाउट योर स्कोर्स, मिड सेम एंड सेम आपको पास होना रहता है, बट स्कोर्स के लिए बॉदर्ड नहीं होते। क्यों नहीं होते? बिकॉज जो मेन प्रॉब्लम है वो तो सॉर्ट आउट हो गई ना, प्लेसमेंट हमें मिल गई है, जिसके लिए हम कॉलेज में आए थे वो हमें हमारा पूरा हो गया एजेंडा। तभी हमें रैंकिंग्स के लिए कब वरी नहीं करना पड़ेगा डायरेक्टर को, कि अभी मैं फैकल्टी को तो कन्विंस नहीं कर सकता, तो ऑब्वियसली रैंकिंग्स इज अ डिफिकल्ट थिंग। वरी मैं तब नहीं करूंगा जब जैसे जो चल रहा है वो वैसे ही चलेगा, रैंकिंग मुझे मिले या नहीं मिले, और वैसे ही कब चलेगा, जब तक एलुमनाई खुश है और वो कंटिन्यूसली हायर कर रहे हैं, और वो हायरिंग को देखते हुए लोग नेक्स्ट ईयर के लिए एडमिशन लेने के लिए मेरे कॉलेज में तैयार है। ये स्ट्रीम कंसिस्टेंट रहनी चाहिए, ठीक है। ऑप्शंस देखते हैं। ABC's placements in the previous year were completed in 4 days। अभी 4 days में कंप्लीट तो हो गया, बट एवरी ईयर ये रिपीट होगा नहीं होगा, दिस इज नॉट द बेस्ट रीजन, राइट। यू कांट लुक एट इट एंड से कि अच्छा नेक्स्ट ईयर भी हमारे साथ ऐसा ही होगा तो हमें रैंकिंग की जरूरत नहीं है। 4 days में हो गया, बट नेक्स्ट ईयर यू नेवर नो। बेस्ट चॉइस तो नहीं लग रहा है, स्ट्रॉन्गेस्ट नहीं लग रहा है। ABC could never break into the top 40 ranks in the country when it applied earlier। Again, पास्ट को देखते हुए फ्यूचर का इतना जल्दी डिसाइड नहीं कर सकते। मे बी उस टाइम लिस्ट में उनका नाम नहीं आया, बट प्रोबेबली हु नोस, दिस टाइम दे हैव डन समथिंग डिफरेंट। हो सकता है उनका नाम आ भी जाए, बट ये बेस्ट रीजन तो नहीं है कि नहीं, अगर पहले नहीं हुआ तब तो अप्लाई करेंगे ही नहीं रैंकिंग्स के लिए, ठीक है। अभी नेक्स्ट देखते हैं। The alumni are aware that ABC offers a retainable talent pool। Now this is important। alumni को पता है कि जो टैलेंट पूल है ना, दैट इज रिटेनेबल, ठीक है। जो उनके एजेंडाज है, जो हमारे एजेंडाज है, वो मैच करते हैं, तो वहां से जो हम उठा कर लाते हैं बच्चों को, दे गोइंग टू लाइक स्टे विद अस। देयर आर रिटेनेबल टैलेंट पूल, जो उनको चाहिए, ऑब्वियसली रिटेनेबल टैलेंट पूल। तो डायरेक्टर को इतनी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है ना कि मुझे मेरे कॉलेज को रैंकिंग आए नहीं आए, एलुमनाई अच्छे से फंक्शन कर रहे हैं, दे आर गोइंग टू टेक स्टूडेंट्स फ्रॉम आवर कैंपस, स्टूडेंट्स को बस एक जॉब चाहिए, वो हम उन्हें दे ही रहे हैं। तो ये एक अच्छा फ्लो है, इसके लिए मुझे अब रैंकिंग्स का इतना सोचने का जरूरत नहीं है, बिकॉज रैंकिंग के लिए बहुत सारे चेंजेस करने पड़ेंगे जो ज्यादा मेरे लिए बॉदरसम है, ठीक है। दिस इज अ गुड रीजन। The alumni do not care for the teachers or classes in general। No, this is not a good reason। alumni केयर करे या नहीं करे, अपने कॉलेज के लिए तो मुझे देखना पड़ेगा ना, सो ठीक है, ये अच्छा रीजन नहीं है। The alumni do not follow research publications in general। उससे भी कोई मतलब नहीं है वो फॉलो करे या नहीं करे, बट ओवरऑल अगर इनके फैकल्टी मेंबर्स रिसर्च जर्नल में कंट्रीब्यूट करेंगे तो उनका नाम बूस्ट होगा, वो एलुमनाई रेफर करे उसको या नहीं करे। सो दिस इज नॉट अ गुड रीजन। सी इज अ गुड रीजन। अभी ऐसा है ना कि कभी कभी आप डिसीजन मेकिंग में ना, you will not agree to the answer choices। okay, everybody has different experiences, different schools of thought। तो यहाँ पे अगर आप बहुत ऐसा steadfast हो जाओगे that you know why this is not right, why this is not wrong, कभी कभी कुछ questions में आपको problem आ सकती है। those questions are best avoided। I think ये एक वैसा क्वेश्चन हो सकता है जहाँ पर लॉट ऑफ पीपल आर नॉट गोइंग टू अग्री टू दिस कोर्स ऑफ एक्शन रादर, ठीक है। आपके पास हमेशा ऑप्शन रहता है कि कुछ क्वेश्चंस आप नहीं अटेम्प्ट करो, नॉट एवरी क्वेश्चन इज सपोज टू बी अटेम्प्टेड। तो अगर आपको डाउट है कोर्स ऑफ एक्शन पे, you would rather not attempt that question, which is absolutely okay, ठीक है। कंफ्यूजन क्रिएट होता है, डिसीजन मेकिंग नॉट दैट स्ट्रेट फॉरवर्ड। बस ये ध्यान रखना, विन विन होना चाहिए, एक्सट्रीम नहीं होना चाहिए, बस इतना याद रखने से हो जाता है। लास्ट क्या है, a few faculty members complained to the director regarding lack of attendance and seriousness among many students। obviously you know ये बच्चे तो पढ़ने आए ही नहीं थे, इन्हें तो बस एक जॉब चाहिए थी, उन्हें क्लासेस की क्या जरूरत। तो लैक ऑफ अटेंडेंस हो रहा है, सीरियसनेस भी नहीं है, तो फैकल्टी मेंबर्स ने कंप्लेन किया। The director knew that this had been the case for decades but became more rampant मतलब more spread you know in the last few years। more rampant मतलब बहुत ज्यादा ही बढ़ गया, ओके, थोड़ा आउट ऑफ कंट्रोल चला गया, इट बिकेम रैम्पेंट, डिफिकल्ट टू कंट्रोल। He was also aware that classes were mostly rituals conducted to tell the world that ABC believed in education and had little bearing on placement। डायरेक्टर को तो सारी कहानी पता है कि बच्चे तो कभी भी क्लास नहीं करते थे, बट अभी एक ऐसा सिनेरियो आ गया है ना कि वो आउट ऑफ हैंड चला गया, ठीक है। एकदम ही ना बच्चे क्लासेस आ रहे हैं, ना एग्जाम्स दे रहे, कुछ भी नहीं कर रहे। एंड ABC काफी डिफरेंट है यार। लुक एट अस, ABC बिलीव्ड दैट यू नो क्लासेस वर मोस्टली रिचुअल्स, जरूरत नहीं है बच्चों को अटेंड करने की, और उसके अटेंडेंस पे तो प्लेसमेंट्स पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, तो दे वर आल्सो नॉट वेरी सीरियस अबाउट इट। फाइन, दे आर नॉट अटेंडिंग क्लासेस, नो वरीज, प्लेसमेंट पे तो फर्क नहीं पड़ रहा है ना, तो दैट इज फाइन।
However, he believed that students must be told to attend classes and take exams with serious attitude. A director being director, when things go out of control, he has to take a stance. He cannot let everything flow like that. I'm not going to look at anything as long as placements are happening. No. Now he feels that students must be told to attend classes and टेक एग्जाम्स विद अ सीरियस एटीट्यूड. अब आप सोचो, एबीसी में कैसे बच्चे आते हैं, पढ़ाई हो नहीं हो, लर्निंग हो नहीं हो, एक जॉब हमें बस दे दो. तो एबीसी के बच्चों को अगर आपको डिसिप्लिन करना है, क्या कोर्स ऑफ एक्शन, आप बिना ऑप्शंस देखे भी सोचो क्या चीज पे आप हिट करो कि उनकी सीरियसनेस वहां पे बढ़ेगी. एक ही चीज के बारे में उनको कंसर्न है, प्लेसमेंट. तो जैसे ही आप प्लेसमेंट को अटेंडेंस से कनेक्ट कर दो तो उनके पास कोई चॉइस नहीं रहेगा अदर देन अटेंडिंग क्लासेस. बाकी और कोई भी कोर्स ऑफ एक्शन आप लो, उनके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, बिकॉज उनका है बस एजेंडा कि मुझे एक जॉब चाहिए, मुझे प्लेसमेंट चाहिए, वट एवर इट इज. सैलरी आई डोंट केयर, इंटेलेक्चुअल ग्रोथ आई डोंट केयर, करियर ग्रोथ आई डोंट केयर, बस मुझे एक जॉब दे दो. तो जैसे ही आप प्लेसमेंट को अटेंडेंस के साथ लिंक कर दोगे, वहां पे बच्चों को प्रॉब्लम आने लगेगी. अभी तक कोई बेरिंग नहीं था, आपस में कनेक्टेड नहीं था, तो दे हैड अ गाला टाइम. तो जैसे ही इन दोनों को कनेक्ट कर देंगे तो ये सिचुएशन सॉल्व हो सकती है, राइट? अभी देखते हैं. Which of the following announcements by the director will best ensure that faculty stop complaining? When will faculty stop complaining? When students start attending classes. When will students start attending classes? When we link somehow attendance with placement. तो उन्हें काफी फर्क पड़ने लगेगा. फिर ऑप्शंस देखते हैं. Faculty members who make classes very engaging should be felicitated during the convocation. उससे बच्चे थोड़ी ना आएंगे. फैकल्टी मेंबर्स को अगर आप अप्रिशिएट कर रहे हैं क्लासेस के लिए, उससे स्टूडेंट्स थोड़ी ना क्लासेस अटेंड करेंगे. तो ये तो नहीं है. तो फैकल्टी इसलिए थोड़ी कंप्लेन कर रही थी कि हमें रिकॉग्निशन नहीं मिल रहा, वो इसलिए कंप्लेन करे कि बच्चे क्लास नहीं आ रहे. दिस इज रॉन्ग, राइट? स्टूडेंट शुड बी आस्क्ड टू पे अ मॉनेटरी पेनल्टी फॉर मिसिंग क्लासेस. वो बिल्कुल ही नहीं आएंगे. आप उनसे अगर मॉनेटरी यू स्टार्ट चार्जिंग देम, दे आर नॉट गोइंग टू कम बैक, दे आर गोइंग टू डिसअपियर ऑल टुगेदर. ठीक है, ये तो उन डेकेड से उन्होंने अपने सीनियर से सीख रखा है कि क्लासेस अटेंड करने की जरूरत है नहीं, प्लेसमेंट हमारी हो जाएगी. ऐसे ऑप्शंस एथिकल भी नहीं होते एंड ऐसे ऑप्शंस वर्केबल भी नहीं होते. दे डोंट वर्क. अभी देखो, स्टूडेंट शुड बी रिवॉर्डेड फॉर कंट्रीब्यूटिंग टू इन क्लास डिस्कशंस एंड लर्निंग. इन्हें थोड़ी ना इंसेंटिव चाहिए, इन्हें तो पढ़ाई नहीं करनी है. Even if you recognize their effort, they are not ready to come to classes. उन्हें पढ़ाई नहीं करनी, उन्हें बस एक जॉब चाहिए. तो even if you reward them, and for in-class discussions, वो in-class discussions का पार्ट ही नहीं बनेंगे. उन्हें तो चाहिए नहीं in-class discussions, उन्हें जरूरत ही नहीं है. Now look at this. Students who attend every class should be given thank you notes from the director. Do you think they care about thank you notes? उन्हें फर्क नहीं पड़ता है, बस जॉब चाहिए, प्लेसमेंट चाहिए. तो ये नहीं है. वे देखो, only students with at least 85% class attendance will participate in placements. अब इन्हें काफी दिक्कत आएगी. 85% अटेंडेंस नहीं हुआ तो प्लेसमेंट में बैठने नहीं देंगे और आपको तो जॉब चाहिए. तो जैसे ही हम प्लेसमेंट और अटेंडेंस को लिंक कर देंगे, they will have no choice but to attend classes and then faculty members are going to stop complaining about student attendance. ये बहुत ही रेगुलर सिनारियो है. ये 85% अटेंडेंस तो आई थिंक आप कॉलेज में जब पढ़ोगे, ये 85% अटेंडेंस द बॉल पार्क फिगर, वरना आपको एग्जाम्स नहीं देने देंगे, प्लेसमेंट में नहीं बैठने देंगे. अब एबीसी को भी यही इंप्लीमेंट करने की जरूरत है. ठीक है, दिस इज अ वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन. आई फेल्ट लास्ट वन थोड़ा अजीब सा था, दिस वन वाज गुड इन माय ओपिनियन. ठीक है, okay, so this set we have wrapped up. We'll keep coming up with other sets also. You guys keep practicing a lot, right? And thank you so much for tuning in.